Bismillahirrahmanirrahim. I am Zawrahman Jamali. I thank my Allah for the blessings that He has granted over me, and I am really thankful to my viewers for the love and respect that they have shown towards me. At the start of my video, I would like to share, I would like to request my viewers to subscribe my channel, share my videos, click the button of liking, and put your comments below to the description so that I may know that whether my videos are serving your purposes or not. Since many days I have been requested to give a lecture on spoken English language. Today I will tell you rules and directions that will make it easy for you to speak. What are these rules that we can follow to speak English language? I say, I request my viewers, I request my learners, I request my students that give me 30 days. Give me 30 days, I will teach you that how to speak English language fluently. I never claim, I never ask the students that they give me money, give me grades, give me any other thing. I do not demand any such type of thing from the side of the students, but rather I say that give your time and get the result. This is what I am asking you. You know that let's start our topic today. For the topic that I have taken, that I am going to give the lecture on that topic. So the topic is spoken English. In other words, you can say how to speak English language. What are the rules that one should follow to speak English language fluently? What are the directions that one can follow to speak English language easily? आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अंग्रेजी लैंग्वेज को आसानी से कैसे बोला जा सकता है। मैं वो सर्टेन रूल्स आपको बताऊंगा जिससे आप आसानी अंग्रेजी ज़बान में बात कर सकते हो। You know that I do not believe, I do not trust in ratification and memorization of the things. I believe in understanding the things well. I believe in learning the things well, learning the concept of the things, that what the things are, and what the concept of the things we should have. I do not say that memorize certain words, certain sentences, and afterwards you will be able to speak in English language. As you see, that English speech of any language, speech or communication, of any language, either that be a Urdu language, either that be a Urdu language or English language, Arabic language, whatever the language is. कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, सिंधी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, स्पीच जो होती है, तकरीर जो होती है, बातचीत जो होती है, वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है. You would yourself see that, you would yourself consider that on which thing it comprised. से वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिन पे आपकी बातचीत मुश्तमिल होती है. आप अपनी बातचीत को करने के लिए कौन से जुमलों का इस्तेमाल करते हो? कौन से जुमले होते हैं? एक तो होते हैं भाई क्वेश्चंस, एक तो होते हैं भाई क्वेश्चंस, और दूसरी जो चीज़ होती है आपकी स्पीच के लिए, आपकी डायलॉग के लिए, आपकी गुफ्तगू के लिए, वो कौन सी चीज़ है? आंसर्स. ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? स्पीच. ये अब दो चीज़ें जब आप मिलाते हो, when you associate these two things,
these two type of sentences, you make a speech. So your speech needs questions and answers. Then I will start from the questions. That how can learner make questions? First of all, learner should give attention on making questions. That how can I make questions? सबसे पहले जो लर्नर है उसको क्या करना चाहिए? सवालात फॉर्म करने चाहिए, सवालात बनाने चाहिए अपने माइंड में कि सवालात कैसे बनते हैं। मिसाल के तौर पे हाउ आज वेदर टुडे, हाउ इज वेदर टुडे, आज मौसम कैसा है? हाउ इज वेदर टुडे, दिस इज द क्वेश्चन। And question starts with two words. There are two types of questions. There are two categories of questions. One starts, there are two categories of questions. Questions भाई दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप्स हैं उनमें? एक है फर्स्ट starts with VH words. एक तो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं VH वर्ड से। मिसाल के तौर पे हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज क्या है। हाउ वाज यूर पेपर, आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो कैसा था। What time is it, टाइम क्या हुआ है। What do you do, आप क्या करते हो, आप क्या हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, फार्मर हो आप क्या। और दूसरे भी मैं दे रहा हूं, what does it mean, उसका मतलब क्या है। What is the nearest hotel, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा करीबी होटल है वो कौन सा है। और दो चीजें और मैं क्लियर करता चलूं कि आप व्हाट का और विच का कहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट का और विच का कहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पे मल्टीपल ऑप्शन हो आपके पास, मल्टीपल ऑप्शन। When you have multiple options available, you can make the use of what. But when you have limited options, you can make the use of which. जैसे कि what is the nearest hotel, आप भाई मुझे बताओ कि इधर जो करीबी होटल है वो कौन सा है, वो कहाँ पे है, वो कौन सा है। आप कह सकते हो which street do I go, मुझे कौन सी गली लेनी चाहिए। दो ही गलियां होंगी, उसमें से आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हैं,
तो इसलिए आप कह सकते हो कि विच स्ट्रीट डू आई गो, मुझे कौन सी स्ट्रीट जाना चाहिए। आप कह सकते हो। तो आप इनको कहते हैं इंटेरोगेशंस। ये हैं आपके क्वेश्चंस। सबसे पहले जो अंग्रेजी बात करना चाहता है, जिसको भी अंग्रेजी में बात करनी है, मुझे आप सिर्फ 15 दिन दें सही के लिए। 15 दिन दें, मैं आपको 15 दिन में बताऊंगा कि अंग्रेजी को बआसानी आप कैसे बोल सकते हो। I do not claim like other YouTubers and I do not say like other teachers that what they teach, what the way they follow, but I follow my own. I follow my own. So I say that these are the questions. When I say those learners, those aspirant जो सीखना चाहते हैं, जिनको सीखने से दिलचस्पी है, वो क्या करें, वो 10 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम ना दो आप सिर्फ 10 मिनट अपने दो। क्या करो कि आप 10 मिनट के लिए किसी अलग जगह पे बैठ जाओ। Only 10 minutes you separate yourself from the interference of your friends. क्या करना चाहिए आपको, 10 मिनट के लिए आपको अपने दोस्तों से, अहबाबों से, अपने जो रिश्तेदार हैं, उनसे अलग जाके बैठना चाहिए। अलग जाके आप गौर करो। सबसे पहले आप गौर करो कि क्वेश्चंस हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कि हमें कैसे सवाल बनाने चाहिए। पहले आप सवाल बनाओ। जब आप सवाल बना लो, फिर आप उन सवालों के जवाब पूछो अपने आप से। अपने आप से उन सवालों के जवाब पूछो और 10 मिनट के लिए ये प्रैक्टिस आप जारी रखो। 10-15 दिन के लिए ये प्रैक्टिस आप जारी रखो। सवाल और जवाब खुद से पूछो, खुद से अलग कमरे में जाके, जहाँ पे आपसे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता हो, आपसे कोई भी बातचीत करने नहीं आए, कोई भी दरवाज़ा रेप ना करे, कोई भी दरवाज़ा नोक ना करे, वहाँ पे जाके आप 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर करो अपने आप से। एक तो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे VHO वर्ड से, जो ऐसे होंगे जैसे कि Why are you late? आपको देर क्यों हुई? Why are you late? Where have you traveled to? आप कहाँ कहाँ पे घूम के आए हो, आप कहाँ कहाँ से होके आए हो। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे। एक तो क्वेश्चन हो गए VHOW वर्ड से, Who is there? Who is there at the door? दरवाजे पे कौन है? तो आपका क्वेश्चन हाउ से भी हो गया, व्हाट से भी हो गया, विच से भी हो गया, और वाई से भी हो गया, हु से भी हो गया। Whose pen is that? Is that? Whose car is that? ये गाड़ी किसकी है? सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस बनाओ। सबसे पहले आप 10 मिनट्स अपने आप को दो। क्या दो? 10 मिनट्स अपने आप को दे दो किसी अलग जगह पे बैठने के लिए। किसी अलग जगह पे बैठने के लिए आप 10 मिनट्स अपने आप को दो। और ये जितने सारे क्वेश्चन हमने VHO वर्ड से लिखे हैं, इनको हम कहते हैं ओपन क्वेश्चंस। इनको हम क्या कहते हैं? ओपन क्वेश्चंस। And second thing that I'm going to share with you, please watch my videos till the end.
get over the line. If you do not watch the videos complete, then you will not get the information, what the information is given in them. One thing that I would like to share with you, that I never demand these students any wage. I am teaching the students free of cost. I do not ask them to give me money and any other thing. I do not demand any other thing, any material thing from the side of the students. And the second thing that I would like to mention here to the students and to the learners, to the viewers, that they can learn from their respective homes. They can learn from their respective homes. For that, what they need to do is that they subscribe my channel. They subscribe my channel and they note my WhatsApp number, and they can ask me what the question is out of understanding. जो क्वेश्चन चीज़ें समझ में नहीं आती वो मेरे आप WhatsApp नंबर से राब्ता करके पूछ सकते हो। अब ये तो हो गए DHO वर्ड्स के क्वेश्चंस, और दूसरे क्वेश्चंस जो हमारे होंगे वो शुरू होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब से जैसे कि आर यू स्लीपिंग, क्या आप सो रहे हो? डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? हैव यू बीन टू कराची, क्या अभी आप कराची से होके आए हो? क्या आप कभी कराची से होके आए हो? कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? Would it be possible? Would it be possible? Would it be possible to? Would it be possible to meet again? क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? Could you please show me मैप, क्या आप मुझे मैप बता सकते हो? और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। ये हो गए आपके क्वेश्चंस, और आपकी जो स्पीच है उसका आधा हिस्सा हमने कवर कर लिया। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके अब आपको आंसर्स देने होंगे। क्या करना होगा? आंसर्स देने होंगे। जैसे कि आंसर्स के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? आंसर्स के लिए हम ऑलमोस्ट जो तकरीबन होता है वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं कि हम डिक्लेरेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हाउ डू आई गेट टू स्कूल, मैं स्कूल कैसे जा सकता हूं, मैं स्कूल कैसे पहुंच सकता हूं। तो उसका जवाब देने के लिए हाउ
do I get to the school? You can get to the school easily. आप स्कूल आसानी से पहुंच सकते हो. जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है. आप कहेंगे कि आई एम इन 15, आई एम इन 15s, मैं 15 साल में चल रहा हूं. आई एम इन 15s, ऐसे ही भाई मैं 15 साल में चल रहा हूं. या आप कह सकते हो आई एम 15 years old, मैं 15 साल का हूं, मैं 15 साल का हो चुका हूं. आपसे दूसरा क्वेश्चन करता है व्हाट टाइम डज इट, टाइम क्या हुआ है. तो आप कहेंगे इट इज 32, इट इज 32. इसका मतलब कि 2:30 बज चुके हैं. या आप कह सकते हो इट इज 30 past, it is 30 past 2, 2:30 बज चुके हैं. तो आप ऐसे इनके जवाब दे सकते हो. सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस बनाने हैं. क्वेश्चंस बना के उसके बाद आपको आंसर्स देने हैं. उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर्स देने हैं इन क्वेश्चंस के. जैसे कि एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं इधर पे, अभी गर्मी है. और मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी गुफ्तगू को शुरू कैसे कर सकते हो. काफी सारे जो लर्नर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि सर हम गुफ्तगू को कैसे शुरू करें, बातचीत को शुरू कैसे करें. वो भी तरीका मैं बताता हूं आपको. हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन. हम अपनी कन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट करें, हमारी जो गुफ्तगू है उसको हम कैसे स्टार्ट करें. फर्ज करो कि आप बातचीत कर रहे हो अपने रिश्तेदार से. फर्ज करो कि आप बातचीत कर रहे हो अपने रिश्तेदार से. वो आपको 2-3 महीने के बाद, मंथ के बाद मिला है. तो आप उसको क्या बोलोगे, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी. काफ़ी टाइम हो गया है, आप मिले ही नहीं, आपसे आपका दीदार ही नहीं हुआ. काफ़ी टाइम से आपका दीदार नहीं हुआ, काफ़ी टाइम से आप नहीं मिले. ये आप फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हो फैमिली के लिए और फ्रेंड के लिए जिसको आप जानते हो. वन टाइम नो सी कि काफ़ी टाइम हो गया आप हमसे मिले ही नहीं. अगर चलो आपके पास जो स्ट्रेंज बंदा है जिसको आप जानते ही नहीं हो, पहली बार मिले हो, तो उसको आप कैसे बोलोगे, उसको बोलोगे ये फ्रेज, इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर, फर्स्ट टाइम हियर, इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर. क्या आप यहाँ पहली बार आए हो,
क्या आपका आना यहाँ पे जो हुआ है वो पहली बार है? क्या आपका यहाँ जो आना हुआ है वो पहली बार है? और दूसरा, अगर ये नहीं पूछते तो ये, डू यू कम हियर ऑफन? क्या आप इधर आते रहते हो? क्या आपका आना जाना यहाँ रहता है? क्या आपका आना जाना यहाँ पे रहता है? तो ये फ्रेजेस आप याद कर लें, मेमोराइज कर लें इनको। अगर स्टेट पर्सन है तो उसको क्या आप कहोगे? क्या उससे बोलोगे इज दिस योर फर्स्ट टाइम? इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर? अगर स्ट्रेंज है तो ये नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे कि डू यू कम हियर ऑफन? क्या आपका आना जाना यहाँ पे रहता है? ये नहीं तो आप क्या कहोगे? लॉन्ग, अगर आपका फ्रेंड है या दोस्त है तो उसको आप क्या कहोगे? लॉन्ग टाइम नो सी। अगर चलो ये भी आप नहीं कहते उससे, तो आप तीसरा फ्रेज कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्त से के हेलो, हेलो आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अपना तारीफ कराना चाहता हूं आपसे, मैं अपना तारीफ कराना चाहता हूं आपसे। आप ये फ्रेज भी बोल सकते हो। इसके बाद आप क्या बोलोगे? इसके बाद हम एंड बताएंगे। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, हाय डू यू हैव अ मिनट? क्या आपके पास मेरे लिए 1 मिनट है? तो ऐसे पूछ सकते हो। अगर चलो आप अपनी कन्वर्सेशन को खत्म करना चाहते हो तो कैसे फ्रेजेस का आप इस्तेमाल करो? अगर आप अपनी कन्वर्सेशन को एंड करना चाहते हो अगर आप अपनी कन्वर्सेशन को एंड करना चाहते हो I do not want to keep you any longer. मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मुझे किसी और जगह पे जाना है। मैं आपसे ज्यादातर बात नहीं कर सकता, मैं आपसे ज्यादा टाइम तक बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे किसी और से मिलना है, किसी और से बात करनी है। तो आप ये फ्रेज उसको बोल सकते हो, क्योंकि जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, जो गुफ्तगू हम करते हैं, उसमें हम पोलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। पोलाइट लैंग्वेज, polite language. I do not want to keep you any longer. I do not want to keep you any longer. Or you can say I do not want to keep you anymore. You can say the sentences like that. और अदर सेंटेंस भी आप कह सकते हो। I shall let you
कैरी ऑन देन। फर्ज करो कि आप किसी पार्टी में जाते हो, कोई शादी है, ब्याह है, किसी भी पार्टी में आप जाते हो, तो वहां पे आप एक दोस्त से बात कर रहे हो, आप वहां पे एक दोस्त से बात कर रहे हो और दूसरे जो दोस्त हैं आपको ग्रीट कर रहे हैं दूर से, तो आप अपने दोस्त को बोलोगे कि ठहरो, मैं आपसे बाद में आके बातचीत करता हूं। आप उसको हाथ देके हैंड शेक करके उसके बाद में आप उसको बोलोगे कि मैं बाद में आके आपसे बातचीत करता हूं क्योंकि कुछ दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। तो फॉर दैट रीजन you end in your conversation like that. I shall let you carry on then. I shall let you carry on then. So like that, these sentences you can make use of these sentences. Another sentence you can say, thanks again for lovely time. आपके कीमती वक्त के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया। आप ऐसे गुफ्तगू को खत्म कर सकते हो। और अगर दूसरे लफ्ज में भी आप बोल सकते हो, कोई और एक जुमला है वो भी आप बोल सकते हो, जैसे कि I have gotta go. I have gotta go. I have gotta go, get going. I have gotta get going. I have gotta get going. I have gotta get going. मुझे अब जाना होगा, मुझे अब जाना होगा। आप ये पोलाइट वे ऑफ लैंग्वेज है। I have got going, I have got gotta going, gotta get going. I have got got go. Sorry, I have gotta get going. I have gotta get going. I have gotta get going. आप नहीं कह सकते कि I have to go. Sorry, ये impolite way है। I have to go now. ये आप नहीं यूज कर सकते। ये जुमला आप इस्तेमाल कर सकते हो कि I have gotta get going. मुझे अब जाना होगा, मुझे देर हो रही है, मुझे किसी से अपॉइंटमेंट है। तो like that you can make the use of many sentences. You know that light is unavailable. और अदर सेंटेंसेस भी आप कह सकते हो। अब आप देख रहे हो कि लाइट है नहीं, लाइट का तो मसला है ना भाई, गर्मी लगी पड़ी हुई है। तो आखिर में जुमला एंड करूंगा इसके साथ, I shall roll out. मैं अब जा रहा हूं, रोल आउट कह सकते हो या हेड आउट भी कह सकते हो। मैं अब जा रहा हूं, भाई काफी हो गया, अब मुझे जाना होगा। तो लाइक दैट यू कैन मेक दी कम्युनिकेशन इजी। आप ऐसे ही लैंग्वेज को बहुत बात कर सकते हो। सो यू नो दैट देयर इज ए लॉट ऑफ हीट, सो आई कांट बियर दैट एनी लॉन्गर, सो आई वुड गेट परमिशन फ्रॉम योर साइड। Thank you once again. Goodbye.